जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा की विज्ञान प्रदर्शनी नवाचार और प्रेरणा का संगम बनी। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा का यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। दरभंगा जिला मुख्यालय स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल द्वारा शुक्रवार को आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी ने छात्रों और दर्शकों को नवाचार और रचनात्मकता के नए आयामों से परिचित कराया। इस प्रदर्शनी ने न केवल छात्रों को अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर दिया, बल्कि समाज के सामने समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने की दिशा में उनके दृष्टिकोण को भी उजागर किया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट्स ड्रोन प्रोटोटाइप, रोबोटिक कार मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक, रेलवे प्लेटफॉर्म पर दुर्घटनाओं को रोकथाम प्रणाली और हैंड डायलिसिस मशीन ने दर्शकों को प्रभावित किया। इन मॉडलों ने छात्र की वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और उनके समाज कल्याण के प्रति समर्पण को प्रदर्शित किया। Winners of class 1 to 5, hip hip, hip hip, hip hip. We are here to show the automated railway station, where we know that in worldwide the most common mode of transport is railway. We modify the railway system and convert into those who are disabled, those who are old citizen and busy person. We connect one platform to another platform, a temporary bridge. Here come Fran to explain you how this is working model. Good morning, sir. In this model, we have used two IR sensors, buzzers, and a train. When the train will come, the first IR sensor sense the train and start buzzing the buzzer. From the buzzer, the people will get to know that the train is coming. After that, when the train move forward, and the second IR sensor sense the train, this bridge automatically withdraw back, and train can pass through it. Sir, my name is Ananya. So we are the student of class 9. My project name is wireless charging. As you can see, this is a working model in which the electricity will be generated by the help of speed breaker, and that electricity will be utilized for the charging of vehicle. As you can see, sir, when the vehicle will pass from the highway, that pressure will be created and potential energy will convert into the electrical energy, and it will store in this battery. After that, you can see there is a coil inside the vehicle and in the charging station. So when we put the car in the coil, the principle which we use in this is a electromagnetic field. This is a project based on solar energy and wind energy. It is working because when after some year we get to see that the renewable energy is getting over. So we made this process to make that over. Today I, Ashika Singh, with my team is here to explain about worming composting. So what is worming composting? Worming composting is a natural and eco-friendly process in which earthworms are used to break down organic material into nitrogen-rich materials. Importance of worming composting. Waste material are used in organic farming and it reduces pollution. Second, enhance soil fertility that enrich the soil with microorganisms and nutrient. Third, sustainable farming help in reducing the use of chemical fertilizer and it promotes organic farming. व्याकरण वृक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इस वृक्ष को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है: संज्ञा, विशेषण, काल, उपसर्ग और लिंग। हर एक विषय को मेरे समूह के सदस्य आपके सामने विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं लिंग के लिए कर्तव्य को लिंग का मतलब है संज्ञा या विशेषण का वह रूप जो स्त्री या पुरुष को दर्शाए। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग जैसे लड़का, घोड़ा, सूरज। स्त्रीलिंग जैसे महिला, लड़की, चंद्रमा। अब धन्यवाद। अब मैं उपसर्ग के लिए फैजान को बुलाना चाहूँगा। नमस्ते, मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूल्य शब्द के आगे जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने एक चक्र बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे ये एक उपसर्ग है और आशा करता हूँ आपको हमारा मॉडल अच्छा लगा।
शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इस छोटे शहर में बाहर से आए तो अपने बच्चे को पढ़ाने में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ हमको। कोई एक अच्छी स्कूल नहीं मिली जो अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सके, जिसके कारण हम एक 5 साल के बच्चे को हमने हॉस्टल में बाहर दिल्ली में या राजस्थान में मैंने डाला। तो हम ये देखा कि जो कमियां हैं हम वो कमियां को इस जहां हम रह रहे हैं उसको पूरा कर दें और वो एजुकेशन नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन दरभंगा जैसे छोटे शहर में हम प्रोवाइड करने का मेरा यही एक मकसद है। हम स्कूल बच्चे को पढ़ाई के लिए हम एक नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल बनाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो एक अच्छे स्कूल बड़े स्कूल में होनी चाहिए। और उसके तहत और मैं जितने यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है। टीचर को जनरली मेरे पास 99% रेजिडेंशियल टीचर बाहर के टीचर हैं और प्रिंसिपल तक भी बाहर के हम लोग रखना चाह रहे हैं। रखने का पर्पस है कि वर्क कल्चर में भी हम लोग के पास, हम लोग भी इसी शहर के हैं, वर्क कल्चर डेवलप नहीं हुआ। वो वर्क कल्चर हम एक नेशनल लेवल का वर्क कल्चर हम देना चाह रहे हैं और हमको बहुत कठिनाइयाँ हो रही है बच्चे को एजुकेशन देने में टीचर के पॉइंट, लेकिन मैं उसको कर लूँगा और कर रहा हूँ और बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। हम सारे स्पोर्ट्स दे रहे हैं। कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कहानी है, चुटकुला है कि जो क्लास का टॉपर जरूरी नहीं है कि लाइफ में वो टॉप कर सके। तो हम ये चाह रहे हैं क्लास का टॉपर भी लाइफ में टॉप करे और जो क्लास में जो वीक बच्चे हैं वो भी अपने लाइफ में अपने ढंग से जो उसमें जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को एक्सपोज कर सके। जैसे हमने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी स्टार्ट किया। हॉर्स राइडिंग मीन्स ये सिर्फ घोड़ा चलाना नहीं होता है। हॉर्स राइडिंग मेंटल कंसंट्रेशन डेवलप करता है। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, तीरंदाजी, जितने और बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब तो नॉर्मल है, गेम है। जो सारा गेम फैसिलिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो प्रॉब्लम हम बहुत जल्द कॉप अप कर लेंगे इसको। कैंपस में हमने एक साइंस एग्जीबिशन कम टैलेंट शो रखा है उसमें, जिसमें बहुत छोटे बच्चे अपना प्रेजेंटेशन रख रहे हैं और थोड़े से बड़े बच्चे साइंस एग्जीबिशन, मॉडल्स, एग्जिबिट्स, प्रोजेक्ट्स, डिस्प्ले, वर्किंग मॉडल्स, हर कैटेगरी के वर्किंग मॉडल्स हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जैसे कि रोबोटिक्स भी हैं उसमें और आपके एआई के रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, जो कि सब वर्किंग मॉडल्स हैं। ऑब्जर्व किया हमने जो थीम रखा है वो एनवायरनमेंट थीम रखा है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं वी हैव टू सेव वाटर, वी हैव टू सेव ट्रीज। तो ज़्यादातर हमारे इवन डिस्प्लेस जो हैं वो भी इसी में है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक जिस तरह का प्रकृति हमें मिली है वैसी ही प्रकृति हमें उनको वापस दें। इसलिए हमारे डांस आइटम्स भी आपने देखा होगा उसी पे थीम बेस्ड है और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी कुछ उसी पे बेस्ड है। हमने ध्यान में रखा हुआ है, इसलिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आपने देखे होंगे तो वो एज लेटेस्ट एज एआई टेक्नोलॉजी और एज लेटेस्ट एज जो नई कारें बन रही हैं, जो टेस्ला जो ड्राइवरलेस कार बन रही हैं, उसका भी आपने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे देखा होगा। सबको उसमें जैसे अभी छोटे बच्चे कह रहे थे कि पेड़ मत काटिए, पेड़ों का दर्द उन बच्चों ने बताया है। तो पेड़ अगर कट गए, उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अगर मान लो पेड़ किसी वजह से कट भी रहे हैं तो उसके बदले हम एक के बदले ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हम जो ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वापस एनवायरनमेंट को दें। 45-50 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। एग्जीबिशन भी हमने 2 कैटेगरी बनाई हैं। एक कैटेगरी क्लास 1 से लेके 5 तक की है, उसमें पहला और दूसरा प्राइज मिलेगा, और एक 6 से लेके 10 तक की है जिसमें पहला और दूसरा प्राइज मिलेगा। सारा काम बच्चों ने अपने हाथ से, ज़्यादातर चीज़ें हमने जो है वो वेस्ट मटेरियल लेके उसको बनाई हैं। फ्रेश मटेरियल बहुत कम, जिसमें कोई लेटेस्ट अगर मान लो मोटर वगैरह लगी है तो वो फ्रेश ली हैं, अदरवाइज हमने कोशिश करी है कि हम वेस्ट मटेरियल को यूज़ करें ताकि रिसाइकिल वाला जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो हम खुद भी करें, तभी हम मैसेज दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछा जो मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं बताना चाहूँगी उसमें। आगे हमारा हम अपने बच्चों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेके जाना चाहते हैं। हमारे बच्चों का एक्सपोजर ये नहीं है कि वो सिर्फ दरभंगा के बच्चे हैं, वो पूरी दुनिया के बच्चे हैं। पूरी दुनिया के बच्चों के लिए हमारे जो बच्चों के लिए हमारा डेवलपमेंट है, जो एक्सपोजर है और जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसकी तरफ मूव करेंगे। हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे बनेंगे, बहुत नॉलेजेबल बच्चे बनेंगे, सेल्फ स्मार्ट बच्चे बनेंगे वो,
अगर वो बच्चे, ऐसा बच्चा हमारा तैयार होगा कि अगर वो बच्चे ग्रुप में खड़े हैं तो अपनी जगह अपने आप ही बनाएंगे। तो उनका सिर्फ हमारी जो प्रिंसिपल है, एक मेन जिसको हम लेके आगे चलते हैं, दैट इज वी कॉल इट बियॉन्ड द बुक्स। हम जो कुछ कराएंगे वो बियॉन्ड द बुक्स। बुक्स तो सभी पढ़ सकते हैं, बच्चा घर में बैठ के भी पढ़ सकता है, पर हम स्कूल में उसको बुक्स के अलावा और क्या देंगे, जो स्मार्टनेस देंगे, वर्ल्डली स्मार्ट देंगे, स्ट्रीट स्मार्ट बनाएंगे बच्चों को। और स्विमिंग पूल, एक पूरा प्रॉपर बड़ा स्विमिंग पूल तैयार किया है। बच्चों के लिए प्लैंच पाथ भी है, हॉर्स राइडिंग भी हमने बच्चों के लिए किया है, ताकि बच्चों को जो चीज़ें वो शायद सिर्फ मेले में जाके देखते होंगे, हमारे बच्चे स्कूल में ही हॉर्स राइडिंग करेंगे। और हॉर्स राइडिंग के सिर्फ नॉट एज अ लेजर बट दे विल लर्न हॉर्स राइडिंग, तो उसका भी बच्चों को उसमें एक्सपोजर मिलेगा। आने वाले टाइम में हम एक से एक बेहतरीन फैसिलिटी बच्चों को देंगे, ताकि हमारे बच्चे किसी चीज़ से वंचित ना रह जाए। जी, हमारे एडमिशन चालू है और आपको मैं बताऊंगी कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन नेक्स्ट सेशन के लिए हो चुका है।